Now today we will start with Article 19 and we will specifically speak about freedom to carry on trade and commerce. So Article 19 guarantees all the citizens of India right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. In this context, reasonable restrictions can be imposed upon this right under Article 19 Clause 6. It says, nothing in subclause G of the said clause shall affect the operation of any existing law so far as it imposes or prevents the state from making any law imposing, in the interest of general public, reasonable restrictions on the rights conferred by the said subclause. मतलब इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इज अ ग्राउंड फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पे. एंड आगे बढ़ते हैं अब. एंड इन पर्टिकुलर nothing in this said subclause shall affect the operation of any existing law so far it relates to or prevents the state from making any law relating to first professional or technical qualification necessary for practicing any profession or carrying on any occupation, trade or business, or second carrying on by the state or by a corporation owned or controlled by the state of any trade, business, industry, or service, whether to the exclusion, complete or partial, of the citizen or otherwise. इसके ये जो सेकेंड क्लॉज है इसको सिंप्लीफाई करके मैं बता देता हूँ कि मतलब स्टेट मोनोपोलीज आर अलाउड. अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ बना दे कि मैं इसी में डील करूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं डील कर सकता. लाइक सपोज आर्म्स एंड एम्यूनेशन, it is an industry which is owned only by the state. Atomic energy industry owned only by the state. So in this situation such kind of monopolies are allowed by the constitution itself. State monopolies are allowed. ठीक है, तो हमें क्या क्या रिस्ट्रेंट मिलती हैं. पहला कि स्टेट कोई भी लॉ बना सकता है जो रीजनेबल restrictions impose करे in the interest of general public. This is the first thing. And secondly, it may make a law talking about the qualifications necessary for practicing a profession or carrying on any occupation, trade or business, or it may make a law relating to monopolies. ठीक है. And of course state चाहे तो like the rest of the citizens it may also indulge into any trade, business, industry or service. ठीक है, ये तो obviously implied है. It's too obvious from the article itself. लेकिन let me tell you one thing. Despite freedom to carry on trade and commerce is a fundamental right, this is the only right जिस पे गवर्नमेंट जितना चाहे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है और इकोनॉमी को किसी भी वे में जो उसे ले जाना हो वो डिसाइड कर सकती है. आपको याद होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, स्टेट डज नॉट इंटरफेयर, सॉरी कोर्ट डज नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक पॉलिसी एंड द स्टेट का मेन डोमेन होता है टू फॉर्मुलेट दोज पॉलिसीज, है ना. तो होता है क्या है इन प्रैक्टिस में बता देता हूँ. प्रैक्टिस में ये होता है कि व्हेनेवर द स्टेट इज इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस और वो इस नाम पे लगा रहा है कि ओके आई एम इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, तो कोर्ट ऑर्डिनरली डेफरेंस देते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट कभी भी इंटरफियर नहीं करते, कोर्ट इंटरफियर करते हैं, लेकिन जब आप रिलेटिवली बात करें कि एज कंपेयर टू द अदर आर्टिकल्स दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स एसेट्रा एसेट्रा, आर्टिकल 21, जब आप इनसे कंपेयर करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 19 का जो क्लॉज जी है उसमें जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स ज़्यादातर इस कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट के फेवर में रूल करते हैं. ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज बट रिलेटिवली स्पीकिंग it is a lot more indulgence that is given to the government than in case of any other right. बाकी किसी राइट्स में अभी आप तो पता ही चल रहा होगा सुप्रीम कोर्ट कितना लिबरल है, पर इस राइट में नहीं. इसके दो रीजंस हैं. पहला रीज़न तो ये है कि इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन करना मेन आपका स्टेट का काम है. ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि कोर्ट्स ने अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रेंट लगाई हुई है कि वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में ज़्यादातर इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है टू डिटरमाइन कि कौन सी पॉलिसी कंट्री के लिए सही है, कौन सी पॉलिसी कंट्री के लिए नहीं सही है. ठीक है, तीसरा रीज़न ये है कि इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप
it is the executive and the legislatures who are responsible to the people, और उनकी मेन जिम्मेदारी होती है to lead and guide the country towards a better future. ठीक है, so that is why कोर्ट थोड़ा डिफरेंस देता है. तो याद रखिएगा, it would be correct to say that despite Article 19 Clause 1 Subclause G, the government enjoys the power to regulate and order the economy in any way it pleases. ठीक है, this fundamental freedom will not come in way in formulating any economic policies that the government wants. ये बात याद रखिएगा. अब थोड़ी देर के लिए जरा प्रियम्बल खोलिए. प्रियम्बल में एक वर्ड है सोशलिस्ट. ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस सोशलिस्ट वर्ड के ऐड होने के बाद क्या कोर्ट को थोड़ा ज़्यादा सैंक्शन देना पड़ेगा टू द रिगरस सोशल कंट्रोल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. सोशलिस्ट होने के बाद आप पता है सोशलिस्ट गवर्नमेंट में जो जो आपकी इंटरप्राइजेज ऑफ बिजनेस और ट्रेड एंड कॉमर्स होते हैं, दे आर मोस्टली स्टेट ओन्ड. तो क्या सोशलिस्ट वर्ड ऐड होने के बाद कोर्ट्स को नेशनलाइजेशन और स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज के फेवर में ज़्यादा लीन होना होगा? क्या कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म एंड सोशल जस्टिस को ऐसे एक्सट्रीम पे पुश कर देना चाहिए कि द इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर कंप्लीटली इग्नोर्ड? देखिए, सोशलिस्ट वर्ल्ड होने के बाद ये प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं. ठीक है, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, as has been evidenced by history, has been a disastrous failure wherever it has been exercised. But nonetheless, ऐसी सिचुएशंस कोर्ट के सामने उठ रही थी कि देखिए सोशलिस्ट का वर्ड आ चुका है प्रियम्बल में, तो क्या नेशनलाइजेशन, स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज के फेवर में ज़्यादा रूल करना कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है? अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का आंसर दिया था एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. ठीक है, इसका साइटेशन है AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 25. इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट. ये केस इस बात पे लोकस क्लासिकस भी है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इस सवाल का आंसर देते हुए बोला था, एंड इट कोटेड अ जजमेंट ऑफ आकादासी पठान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा. लेकिन ये इशू प्राइमरली सेटल हुआ था एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. ठीक है, कि द क्वेश्चन वाज दैट वेदर अ लॉ क्रिएटिंग अ स्टेट मोनोपोली इज वैलिड under the latter part of Article 19 Clause 6. Supreme Court said, with the rise of philosophy of socialism, the doctrine of state ownership has been often discussed by political and economic thinkers. Broadly speaking, the discussion discloses a difference in approach. To the socialist, nationalization or state ownership is a matter of principle, and its justification is the general notion of social welfare. To the rationalist, nationalization or state ownership is a matter of expediency dominated by considerations of economic efficiency and increased output of production. The latter view supported nationalization only when it appeared clear that the state ownership would be more efficient, more economical, and more productive. The former approach was not very much influenced by these considerations and treated it as a matter of principle that all important and nation building industries should come under the state control. The first approach is doctrinaire and the second approach is pragmatic. The first proceeds on a general ground that all national wealth and means of production should come under the national control, while the second supports nationalization only on the grounds of efficiency and increased output. Supreme Court quoted the judgment of Akadasi Padhan versus State of Orissa. ठीक है, इसको कोट किया था एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. ध्यान रखिए, हम एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की ही बात कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसको कोट किया और बोला कि द डिफरेंस बिटवीन द डॉक्ट्रिनेयर अप्रोच टू द प्रॉब्लम ऑफ सोशलिज्म एंड द प्रैग्मेटिक वन इज वेरी एप्ट एंड मे इनेबल द कोर्ट्स टू लीन मोर इन फेवर ऑफ नेशनलाइजेशन एंड स्टेट ओनरशिप ऑफ द इंडस्ट्री आफ्टर द एडिशन ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुनिए, आई रीइटरेट अगेन.
The difference pointed out between the doctrinaire approach to the problem of socialism and the pragmatic one is very apt, and it may enable the courts to lean more and more in the favor of nationalization and state ownership of an industry after the addition of the word socialist in the preamble of constitution. तो आपके सवाल का आंसर यहाँ पे हो गया, पर अभी आगे बढ़ते हैं. But so long as the private ownership of the industry is recognized and governs an overwhelmingly large portion of our economic structure, it is possible to say that the principles of socialism and social justice can be pushed to such an extreme as to ignore completely, or to a very large extent, the interest of another sections of persons, namely the private owners of the undertakings. Most industries are owned by limited companies in which the number of shareholders, both big and small, holds the share. There are creditors and depositors and various other persons connected with or having dealings with the undertaking. Does socialism go to the extent of not looking to the interest of all such persons, namely the private owners of the undertakings? Most of the industries are owned by limited companies in which a number of shareholders, both big and small, holds the share. There are creditors and depositors and various other persons connected with और हैविंग डीलिंग्स विद दी अंडरटेकिंग. यहाँ पे अंडरटेकिंग का शब्द आप कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में समझिए, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूड एंड सेड, डज सोशलिज्म गो टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट लुकिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सच पर्सन्स? इन अ स्टेट ओन्ड अंडरटेकिंग, the government is the owner of the government company. If a state owned company is forced to close down, they may protect the labor by several other methods at their command, and even sometimes at the cost of public exchequer. It may not be always advisable to do so, but that is a different question. But in a private sector, obviously, the two matters involved in running it are not on the same footing. One part is the management of the business done by the owners or their representatives, and the other is running the business for the return to the owner, not only for the purpose of meeting his livelihood or expenses, but for the purpose of growth of the national economy by formation of more and more capital. Does it stand to reason that by such rigorous provision like those contained in the impugned sections, all these interests should be completely or substantially ignored? Supreme Court then said that the question posed are suggestive of the answers. In the result, Supreme Court allowed all the petitions and declared Section 25O of Industrial Disputes Act as a whole and Section 25R of the same Act, so far as it related to awarding of punishment for the infraction of provision of Section 25O, as constitutionally bad and invalid for a violation of Article 19, Clause 1, Subclause G. ठीक है. अब ये जो केस है ना, एक और चीज़ पे अथॉरिटी है, वो ये है कि वेदर अ राइट टू क्लोज डाउन एन अंडरटेकिंग इज़ अ फंडामेंटल राइट और नॉट. ठीक है. अब इस केस में, इसको समझने के लिए मैं इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, क्योंकि ये केस है बहुत बड़ा. अब इसमें हुआ क्या था, ये जो एक्सेलवेयर है ना, इट वाज अ पार्टनरशिप मैन्युफैक्चरिंग फर्म एंड इट मैन्युफैक्चर्ड गारमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट्स. अब यहाँ पे इनके फर्म में 400 पर्सन एम्प्लॉयड थे. पिटिशनर्स का कहना था कि उनका और उनके वर्कर्स का रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गया और वर्कर्स जो थे मिलिटेंट और एग्रेसिव और वायलेंट हो गए और इलीगल स्ट्राइक्स में इंडल्ज करने लगे, जिसकी वजह से इट बिकेम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द पिटिशनर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस. इसलिए पिटिशनर्स ने एक नोटिस सर्व की ऑन द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर द क्लोजर ऑफ अंडरटेकिंग इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 25O ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947. आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था. स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं, आपको ये अप्रूवल नहीं दी जा सकती, बिकॉज ये जो क्लोजर है इट वुड बी प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट. तो पिटिशनर्स का कहना था कि राइट टू क्लोज डाउन अ बिजनेस इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू कैरी अ बिजनेस गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
और ये जो सेक्शन 25O है ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस impose करता है on the exercise of this fundamental right, and it is highly unreasonable, excessive and arbitrary. In fact, petitioner said that it is not a restriction but amounts to destruction and negation of that right. तो ऑल इन ऑल इनका कहना था कि राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस इंक्लूड्स अ राइट नॉट टू कैरी ऑन अ बिजनेस विच इज लाइक एनी अदर राइट मेंशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1, and the right of freedom of speech includes right to not to speak, and the right not to form an association is inherent under right to form an association. ये मतलब उनका आर्ग्यूमेंट था, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा है ये पेटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट है. सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि राइट टू क्लोज डाउन अ बिजनेस कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द राइट नॉट टू स्टार्ट और कैरी ऑन अ बिजनेस. ठीक है, कि दोनों की बराबरी नहीं हो सकती. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक्सट्रीम प्रोपोजिशन अर्ज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर बाय इक्वेटिंग टू राइट्स एंड प्लेसिंग देम एट पार इज नॉट एपोजिट एंड साउंड. एपोजिट बोला है, ऑपोजिट नहीं बोला. एपोजिट का मतलब होता है समथिंग विच इज एप्ट और समथिंग विच इज अप्रोप्रिएट और रेलेवेंट. ध्यान रखिएगा, ये सारे टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. वर्ड में एंटोनिम और सिनोनिम्स भी आते हैं एग्जाम में. योर इंग्लिश शुड बी रियली गुड इफ यू आर thinking about being a judicial aspirant. Nonetheless, Supreme Court further continued and said, if one does not start a business at all, then perhaps under no circumstances he can be compelled to start one. Such a negative aspect of the right to carry on a business may be equated with the negative aspect of the right embedded in the concept of right to freedom of speech, to form association, or to acquire or hold property. Perhaps under no circumstances a person can be compelled to speak, to form an association, or to acquire, to hold a property, but to impose reasonable restrictions he can be compelled not to speak, he can be compelled not to form an association, and he can be compelled not to acquire or hold property. ये not to acquire or hold property का expression इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि at that time right to property was part of article 19 एंड आर्टिकल 31 अब तो हट गया. ठीक है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ. सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूड एंड सेड, हाउएवर ग्रेटर द रेस्ट्रिक्शन द मोर नीड फॉर स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी बाय द कोर्ट. द कंटेंशन पुट फॉरवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द लेबर यूनियंस that right to close down a business is not an integral part of the right to carry on a business, or that it is not a fundamental right at all, is also wrong. तो सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही बोल रहा है कि एक तरफ जो एक एक्सट्रीम प्रोपोजिशन पेटिशनर का था कि हम जब चाहे स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहे बंद कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतना एक्सट्रीम प्रोपोजिशन भी नहीं अलाउड है क्योंकि उस पर भी रिस्ट्रेंट लग सकती है. और जो रिस्पोंडेंट्स का प्रोपोजिशन था कि राइट टू क्लोज डाउन अ बिजनेस इज नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 एट ऑल, उसको भी रिजेक्ट किया. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि the contention put forward on behalf of the labor unions that the right to close down a business is not an integral part of the right to carry on a business, or that it is not fundamental right at all, is also wrong. In one sense, the right does appertain to property, but such a faint overlapping of the right to property engrafted in Article 19 Clause F or Article 31 must not be allowed to cast any shade or eclipse on the simple nature of the right. However, the right to close down is not an absolute right. It can certainly be restricted, regulated and controlled by law in the interest of general public. So there you have it. Supreme Court accepted the proposition that the right to close down an undertaking is part of Article 19, Clause 1, Subclause G. However, it did not agree with the petitioner's argument कि इस पे कोई रीजनेबल रिस्ट्रेंट नहीं लगाया जा सकता क्योंकि अगर लगाएंगे देन इट वुड अमाउंट टू डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट राइट. ठीक है, to this extreme proposition Supreme Court didn't agree. Supreme Court said yes, that right is there, but that right is subject to reasonable restraint. और गवर्नमेंट चाहे, लेजिस्लेचर्स चाहे तो उस पर restraint लगा सकते हैं. Similarly, it disagreed with the contention of the respondents and the labor union कि right to close down a business is not a fundamental right at all. Supreme Court simply said कि इसकी एक फेंट सी ओवरलैपिंग होती है राइट टू प्रॉपर्टी से, फेंट सी,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये राइट है नहीं। अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, ठीक है, वो राइट है उसके अंदर, एंड दैट राइट कैन सर्टेनली बी रिस्ट्रिक्टेड, रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय लॉ, ठीक है। अब देखिए, जो आपके जितने भी पुराने जजमेंट्स हैं ना, उसमें आपको दिखेगा कि कोर्ट का इंक्लिनेशन नेशनलाइजेशन की तरफ है और स्टेट मोनोपोलीज की तरफ है। लेकिन जो मॉडर्न ट्रेंड है, मॉडर्न एरा का मतलब जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंड है थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की तरफ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ नेशनलाइजेशन द ट्रेंड हैज शिफ्टेड टू प्राइवेटाइजेशन। इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड कॉमर्स, द एम्फेसिस is now to relax the government control. In fact, after the liberalization of our economy, the government itself has undergone this change, and even the government itself does not seek nationalization unless it is in public interest. Rather, it has shifted towards privatization. आपने देखा ही होगा मॉडर्न ट्रेंड्स, और ये बहुत अच्छा ट्रेंड है क्योंकि इसी की वजह से इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। एंड इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड कॉमर्स, गवर्नमेंट भी अपना जो कंट्रोल है धीरे धीरे रिलैक्स कर रही है। तभी आप न्यू लेबर कोड्स देख रहे हैं, आपने नए लेबर लॉ देखे, दे आर वेरी गुड। आपने नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखे हैं, आपने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड देखा है, उसमें जो प्रोविजंस हैं दे आर वेरी एप्ट फॉर द कंडीशंस ऑफ द कंट्री। आर्बिट्रेशन एक्ट हैज़ अंडरगॉन अ ट्रिमेंडस चेंज एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इन लाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या दिखा रहा है? गवर्नमेंट इज सीकिंग लेस कंट्रोल एंड is trying to fulfill the role as a facilitator rather than a controller of the private enterprise, and this is a good trend, but पुराने टाइम में ऐसा नहीं था। अब जरा दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या राइट टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस इज सबॉर्डिनेट टू द स्टेट मोनोपोलीज है? मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे कि मैं इस चीज़ पे स्टेट मोनोपोली करना चाहती हूँ और आप चाहते कि नहीं मेरा ट्रेड और बिजनेस में, तो इसमें से प्रेफरेंस किसको मिलेगा? दिस इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये सिमिलर साउंड कर रहा होगा इन कंटेक्स्ट ऑफ अर्लियर क्वेश्चंस दैट वी पोज, बट इट इज़ नॉट सिमिलर। अब इसका आंसर हुआ था आपका आकादासी प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये एक्सेल वेयर में कोर्ट भी हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा कैंडू लीव्स कंट्रोल ऑफ ट्रेड एक्ट 1961 को अपहेल्ड किया था। दैट लॉ conferred monopoly on the state in the matter of trade in kendu leaves. Supreme Court said that the law relating to such trading activities must be presumed to be reasonable and in the interest of general public. ठीक है? Court simply stated that the law relating to the state monopoly should be presumed to be reasonable in the interest of general public within the scope of Article 19, Clause 6, Subclause 2. The state is not required to justify its trade monopoly as reasonable restriction and being in the interest of general public. It is presumed to be so. वो presumption होता है, आप presumption rebut करिए तब जाके वो पूछेगा, otherwise कोर्ट पूछेगा भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिज्यूम करके रखता है कि मोनोपोली इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया जा सकता कि द स्टेट कैरीज ऑन अ बिजनेस आइदर एज अ मोनोपोली, आइदर कंप्लीट और पार्शियल टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल और सम ऑफ द सिटीजंस और इन competition with any citizen. Thus, we can simply state that the right of a citizen to carry on a trade is subordinate to the right of the state to create a monopoly in its favor. But the citizens का right to carry on a trade or in business is subordinate to the right of the state to create a monopoly in its favor. जब भी आप स्टेट की पावर टू कैरी ऑन ट्रेड की बात कर रहे हो ना, तो आर्टिकल 298 का भी रेफरेंस दीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 298 talks about the executive power of the union and each state shall extend to carry on any trade or business and to the acquisition, holding and the disposal of property and in making contracts for any purpose. उसको देख लीजिएगा। आर्टिकल 299 स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, लेकिन आर्टिकल 298 टॉक्स अबाउट द पावर टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस और एनी कॉमर्स, ठीक है। एक बार उसके रेफरेंस में भी देख लीजिएगा। जब भी स्टेट की पावर या स्टेट की मोनोपोली
या स्टेट का ट्रेड कैरी ऑन करने के राइट्स की बात कर रहे हैं आप, 298 का रेफरेंस देना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आपको लगा होगा ये तो व्यू सुप्रीम कोर्ट का तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के फेवर में है। हाँ है एक तरीके से, बट द प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको भी ना, इट हैज सॉल्व्स द लॉ विद जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 6 का सब क्लॉज 2 protects only those statutory provisions which are basically and essentially necessary for creating state monopoly, and not such provisions which are only subsidiary, incidental or helpful to the operation of state monopoly. मतलब जो स्टेट मोनोपोली क्रिएट कर रहा है वो प्रोविजंस को तो बचाएगा आर्टिकल 19 का क्लॉज 6 का सब क्लॉज 2, लेकिन जो प्रोविजन सब्सिडरी, इंसिडेंटल और हेल्पफुल है उन पे वो प्रोटेक्शन या उनके पास वो इम्यूनिटी नहीं है, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा ट्विन टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। पब्लिक इंटरेस्ट भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा और रीजनेबलनेस का भी टेस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सो इट हैज टू सेटिस्फाई द ट्विन टेस्ट। पर कौन सा वाला? सब्सिडरी, इंसिडेंटल या हेल्पफुल प्रोविजंस विच आर नॉट क्रिएटिंग द मोनोपोलीज देमसेल्व्स। तो इस केस के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो लॉ मोनोपोली क्रिएट कर रहा था उसको तो बोला कि चलिए ये तो प्रिज्यूम्ड है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसमें इसको सेटिस्फाई करने की कोई ज़रूरत नहीं किसी भी टेस्ट को। लेकिन जो प्रोविजन सब्सिडरी, इंसिडेंटल और हेल्पफुल हैं उनको सेटिस्फाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, द ट्विन टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस एंड पब्लिक इंटरेस्ट। तो इस केस में जो प्रोविजंस थे विच डेल्ट विद फिक्सेशन ऑफ प्राइस at which the Kindu leaves were to be purchased from the growers, they were treated as incidental and thus they were grossly unfair and contravened the rights of the growers and were bad, and they had no immunity under Article 19 Clause 6. साथ ही साथ एक और रूल को उड़ा दिया था इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, जहाँ पे ये था कि गवर्नमेंट एजेंट्स को अपॉइंट कर सकती है और एजेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे ऐसा एग्रीमेंट इन सच फॉर्म जैसा भी गवर्नमेंट चाहे। सुप्रीम कोर्ट ने उस रूल को उड़ा दिया और बोला कि दिस रूल इज बैड बिकॉज इट लीव्स इट टू द स्वीट विल एंड प्लेजर ऑफ द ऑफिसर कंसर्न टू फिक्स एनी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन एड हॉक बेसिस। दिस इज बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। सो दिस इज अ वेरी वैल्यू जजमेंट वेयर द कोर्ट protected the state monopolies as well and said कि what provisions would be protected and what would not be protected। तो याद रखिएगा कोर्ट ने बहुत एक्सप्रेसली कह दिया है कि 19 के क्लॉज 6 के सब क्लॉज 2 में से वही स्टैट्यूटरी प्रोविजंस प्रिज्यूम्ड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और करेक्ट विच आर बेसिकली एंड एसेंशियली आर नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग अ स्टेट मोनोपोली, क्योंकि वो माना जाता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही है। लेकिन वो प्रोविजन प्रोटेक्टेड नहीं होते विच आर ओनली सब्सिडरी, इंसिडेंटल और हेल्पफुल टू द ऑपरेशन ऑफ स्टेट मोनोपोली, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल ऑन दैट, क्योंकि वो जो लैटर प्रोविजन है विच आर सब्सिडरी, इंसिडेंटल और हेल्पफुल, दे हैव टू सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस एंड पब्लिक इंटरेस्ट। इस केस में एक और इंपॉर्टेंट बात हेल्ड हुई थी कि गवर्नमेंट या स्टेट अपने फेवर में तो मोनोपोली बना सकता है, बट इट कैन नॉट क्रिएट अ मोनोपोली इन द फेवर ऑफ थर्ड पर्सन फॉर देयर बेनिफिट। अगर वो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए मोनोपोली बनाता है देन इट वुड बी इनवैलिड एंड वुड बी स्ट्रक डाउन। स्टेट कैन ओनली क्रिएट अ मोनोपोली इन इट्स ओन फेवर, and if state has created a monopoly in the favor of a third person, then it has to satisfy and fulfill the normal requirements of Article 19 Clause 1 Subclause G read with Article 19 Clause 6। वैसे ये केस था, अभी दूसरा केस है, वी कैन मूव ऑन नाउ। केस का नाम है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस पंजाब ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। साइटेशन इज AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1626। In that case, a government policy to purchase certain medicines for government hospitals from public sector manufacturers only was held not to amount to a monopoly, because the policy does not prohibited the other manufacturers from manufacturing and selling their products to other consumers. The government's requirement for drugs was very limited, and there was also a lot of public demands for drugs in the open market from the other consumers as well. Supreme Court observed in this context
that the monopoly as contemplated under Article 19 Clause 6 of the Constitution is something to the total exclusion of others. Creation of a small captive market in the favor of state-owned undertaking out of a large market can hardly be treated as creation of monopoly as contemplated under Article 19 Clause 6 of the Constitution, more so because this captive market consists only of state-owned hospitals and dispensaries. Thus, on facts, there is no monopoly created by the impugned policy. ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं. जरा ट्रेड पे मैं थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ क्योंकि ट्रेड पे थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं. ठीक है, देखिए जो गारंटी दी गई है आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 के आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज जी में, इट एक्सटेंड्स टू प्रोफेशन कैरिंग ऑन एन ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस. तो ये 4 डिफरेंट एक्सप्रेशन यूज होते हैं और इनको जितना कॉम्प्रिहेंसिव और इनका जितना लिबरल इंटरप्रिटेशन हो सके उतना करना चाहिए. And it includes all the avenues and modes through which a person earns his livelihood. पर तब भी एक्टिविटी जो है it has to fall within the expression that is that it should be of a commercial or trading nature. An activity जो commercial या trading nature में नहीं आती, that cannot be regarded as being protected under Article 19 Clause 1 Subclause G. अब देखिए, अब जैसे यू आर अ पेंटर, दैट इज योर ऑक्यूपेशन. ठीक है, आपका प्रोफेशन एज एन एडवोकेट हो सकता है, एज एन आर्किटेक्ट हो सकता है, एज अ डॉक्टर हो सकता है. ट्रेड और बिजनेस ये तो आप समझते ही हैं, ये कमर्शियल सेंस में सबसे कॉमन एक्सप्रेशन है. तो याद रखिएगा कि जब भी कोई भी एक्टिविटी जो ट्रेड या बिजनेस में नहीं आती है उसको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. ऐसे सवाल प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन के कॉन्टेक्स्ट में कम ही उठते हैं, जैसे बीइंग अ टीचर इज एन ऑक्यूपेशन. ठीक है, बट बीइंग एन एडवोकेट इज अ प्रोफेशन, है ना. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स. प्रोफेशंस में देयर इज नॉट अ गारंटी ऑफ आउटकम. बिजनेस एंड ट्रेड आर डन फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट मोस्टली. ठीक है, नॉन प्रॉफिट भी होते हैं पर दे आर डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. लीगल कंटेक्स्ट में और कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट में कोई भी एक्टिविटी which requires the protection of Article 19 Clause 1 Subclause G must be regarded as a trade or business or must fall under the profession or occupation, because if it does not, then it will not be having that protection. So जुडिशरी का ये तरीका है कि जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल कुछ एक्टिविटीज़ पे हो रहा है या बेटिंग एंड गैम्बलिंग पे हो रहा है एसेट्रा एसेट्रा, या कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना उनको ट्रेड की कैटेगरी में लाता ही नहीं. कहता है कि दिस डज नॉट फॉल अंडर द ट्रेड. ठीक है, एंड इट रिफ्यूजेस टू अकॉर्ड दोज एक्टिविटीज़ as trading or commercial activities because of the consideration of public morality, public interest or their other harmful or dangerous character. Let me give you the first example on betting and gambling. इस पे हमारा लोकस क्लासिकस है, आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMDC, जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं. वह पूरा नाम काफ़ी लंबा है. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस केस, यू कैन रीड इट योरसेल्फ. इसका साइटेशन है AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 699. यहाँ पे बेटिंग एंड गैम्बलिंग वॉज हेल्ड टू बी नॉट अ ट्रेड. बेटिंग एंड गैम्बलिंग ट्रेड में नहीं आता एंड हेंस फॉल्स आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G, as the gambling activities from their very nature and in essence are res extra commercium, although the external forms formality and instruments of trade may be employed. तो उन्होंने कहा बेटिंग एंड गैम्बलिंग इसमें नहीं आता है और उनको उस पर टोटल स्टेट कंट्रोल और या उसका प्रोहिबिशन किया जा सकता है. हाउएवर प्राइस कॉम्पिटिशन्स जो है, क्योंकि इसमें प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट्स भी थी, कि प्राइस कॉम्पिटिशन्स जो हैं दे इन्वॉल्व सब्सटेंशियल स्किल्स एंड आर रिगार्डेड एज अ बिजनेस एक्टिविटी, एंड अ प्राइस कॉम्पिटिशन विच इज ऑफ गैम्बलिंग नेचर दैट वुड नॉट फॉल विद इन द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G. तो प्राइस कॉम्पिटिशन यहाँ पे सब्सटेंशियल स्किल्स है, जैसे क्रॉसवर्ड पजल है ना, इट रिक्वायर्स द एक्सरसाइज ऑफ स्किल. चेस कंपटीशन है, एसेट्रा एसेट्रा. ये जो सारी चीज़ें हैं ना,
यहाँ पे स्किल का इफेक्ट होता है, तो दे आर बिजनेस एक्टिविटीज. बट जहाँ पे प्राइस कंपटीशन गैम्बलिंग है, यहाँ पे लक या चांस काम करता है, वहाँ पे द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी इज नॉट अफोर्डेड, बिकॉज कोर्ट्स का ये मानना है एज अ मैटर ऑफ जुडिशियल पॉलिसी कि लोगों को अपना टाइम स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए रादर देन रिलाइंग ऑन चांस एंड लक. ठीक है, अब आ जाते हैं जरा लिकर ट्रेड पे. इट इज़ अ बर्निंग इशू राइट नाउ कि क्या लिकर ट्रेड को ट्रेड की कैटेगरी दी जा सकती है. अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्यों नहीं दी जा सकती है, लिकर ट्रेड बार्स तो हम लोग ने इतने देखे हैं. लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. When liquor trade is concerned, yes, it is a trade, but for the first time in 1954, Supreme Court, in the case of Kuvarji versus Excise Commissioner Ajmer, citation is AIR 1954 Supreme Court page number 220, said that no one has an inherent right to sell intoxicating liquors in a retail sale. A citizen has no such privilege. It is a business which is dangerous to the community and the state may entirely prohibit or permit it under conditions. The manner and the extent of regulation rest entirely within the discretion of the state. अब याद रखिएगा, इसके अंदर स्टेट चाहे तो प्रोहिबिट भी कर सकता है. ठीक है, दैट वेन्यू एन ऑप्शन इज ओपन विद द स्टेट. अब आपको ये समझाने के लिए कोई ऑफ जजमेंट नहीं है. लेट मी गिव यू अ ब्रीफ टाइमलाइन. नेक्स्ट लाइन में आता है नारेश्वर versus State of Madhya Pradesh. A citation is AIR 1975 Supreme Court page number 360. In this case, Supreme Court held again that there was no fundamental right to carry on the trade in liquor because of the reasons of public morality, public interest, and because such trade is harmful and dangerous to the public. Supreme Court ruled that there is police power of the state to enforce public morality to prohibit trades in noxious and dangerous goods. अब याद रखिएगा, आर्टिकल 47 भी सुप्रीम कोर्ट अक्सर इन्वोक करता है ये बताने के लिए कि आर्टिकल 47 का ये मैंडेट है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग्स एंड इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेज है, इसको रोका जाना चाहिए. ठीक है, कि मतलब नॉट द प्रोहिबिशन बट द स्टेट शुड स्ट्राइव फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ दिस लिकर्स एंड इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेज. ठीक है, दैट इज द एम ऑफ आर्टिकल 47. सो डायरेक्टर प्रिंसिपल को वो अक्सर सपोर्ट में बुलाता है वाइल गिविंग द जजमेंट. वैसे ही देयर इज द केस ऑफ हरशंकर वर्सेस डेप्यूटी एक्साइज टैक्स कमिश्नर AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1121. Supreme Court referred to the previous case laws and once again held there is no fundamental right to trade or business in intoxicants. State under its regulatory powers has the right to prohibit absolutely every form of activity in relation to intoxicants, its manufacturing, storing, export, import, sale and possession. Then came the case of Khode Distilleries versus State of Karnataka. It was reported in 1995, volume number 1, Supreme Court cases, page number 574. Supreme Court said, again, citizen has no fundamental right to trade or business in intoxicating liquors, and the trade or business in such liquors can be completely prohibited because of its pernicious and vicious nature. Dealing in intoxicating liquors is considered to be res extra commercium. The state can create a monopoly either in itself or in an agency created by it for manufacture, possession, sale and distribution of the liquor as a beverage. The state can impose restrictions, limitation and even prohibition on intoxicating liquors. This is a quotable case and I want you to quote it जब ये पूछा जाए. ठीक है. There was also the case of State of Andhra Pradesh versus McDowell and Company. McDowell so आपने नाम सुना होगा, ये केस याद रखना आसान होगा थोड़ा आपका. AIR 1966 Supreme Court, no sorry, AIR 1996, AIR 1996 Supreme Court page number 1627. It was reported in AIR. ठीक है. So यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि state can again impose severe restrictions and prohibitions on the trade in intoxicating liquors. Article 47 expressly speaks of the obligation of the state to endeavor to bring about the prohibition of the consumption of intoxicating liquors. Therefore, imposing prohibition is to achieve the directive principle adumbrated in Article 47. Such a course merits to be treated as a reasonable restriction within the meaning of Article 19, Clause 6. तो याद रखिए, लिकर ट्रेड को लेके सुप्रीम कोर्ट इज अ बिट स्ट्रिक्ट.
पर अब मैं आपको एक बात बता दूं, आर्टिकल 19 में तो शायद ना बच पाए ये जो लिकर ट्रेड वाले पर्सन्स है, लेकिन मैं कैवियाट ऐड करना चाहूँगा कि although the regulation of liquor trade may fall outside the ambit of Article 19, Clause 1, Subclause G, Article 14 can still be invoked if the restriction imposed on the liquor trade is found to be arbitrary, irrational और unreasonable. अगर Article 14 के टेस्ट पे फेल हो गया तो हो सकता है कि ऐसे गवर्नमेंट की एक्ट या पॉलिसी स्ट्रक डाउन हो जाए. This line of reasoning was accepted in the case of Ugar Sugar Mills, Ugar Sugar Works Limited versus Delhi Administration, AIR 2001, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1447. ठीक है, मतलब याद रखिएगा, कभी आइसोलेशन में मत देखिएगा कि आर्टिकल 19 में नहीं गया तो फिर कहीं नहीं हो सकता. नो, कभी कभी हो सकता है कि कोई और आर्टिकल अप्लाई कर जाता है, आर्टिकल 14 अप्लाई कर सकता है, कोई और आर्टिकल अप्लाई कर सकता है. ठीक है, सो बी वेरी क्रिएटिव इन योर थॉट पैटर्न व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एंड इट्स प्रोटेक्शंस. गैम्बलिंग को तो लेके मैं आपको बता चुका हूँ, उस पर एक और मैं केस बता देता हूँ, है कृष्णा चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. ये सब इलस्ट्रेशन के लिए हैं. अब तो इसमें इसका साइटेशन है AIR 1965, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 307. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला था कि जो गैम्बलिंग एक्ट्स हैं विच सीक्स प्रोहिबिशन ऑफ गैम्बलिंग वो वैलिड हैं, और गैम्बलिंग जो है दैट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी. अब आप समझ चुके हैं क्यों. ठीक है, दीज आर नॉट वो ट्रेड की डेफिनेशन में नहीं आता अकॉर्डिंग टू कोड. वैसे ही आपको मनी लेंडिंग, प्राइवेट मनी लेंडिंग का भी एग्जांपल लेता हूँ. प्राइवेट मनी लेंडिंग पे केस है फतेह चंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1977, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1825. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द मनी लेंडिंग टू पुअर विलेजेस is not within the ambit of trade and commerce as it is exploitative of the village people. Such an activity is considered antisocial, unscrupulous, and money lending amongst the commercial community is a trade and it is an integral part of the trade and commerce. However, exploitative money lending by private persons can be validly be prohibited by the state authorities concerned. यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूँ. आपने देखा होगा कि कई स्टेट्स में प्राइवेट मनी लेंडिंग बैंड है, जैसे आंध्र प्रदेश में है, इट्स बैंड कि आप प्राइवेटली मनी लेंड नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं ना कि इंटरेस्ट रेट एग्जॉर्बिटेंट होती है उनकी, कि भाई आपको 10,000 लिया और क्या कहते हैं 10% पर मंथ के इंटरेस्ट पे आपसे सूदखोरी वसूल कर रहे हैं. सो दिस कैन बी प्रोहिबिटेड बाय द स्टेट. कमर्शियल एस्पेक्ट्स में तो जैसे बैंक्स हैं आपको वो लोन दे सकते हैं, आप उनसे पर्सनल लोन ले लीजिए क्योंकि उनका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है. बट प्राइवेट मनी लेंडिंग एंड स्पेशली टू पुअर विलेजेस, they cannot be given the protection of trade and commerce. But at the same time, keep in mind that it is not that the money lending is prohibited, it is the money lending which is exploitative by the private persons that is prohibited. कभी कभी क्या होता है ना, SC/ST कम्युनिटी के पर्सनस को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है by giving them large amounts of money as a loan by private persons and then they just extract interest from them. तो ये जो सारी चीज़ें ना ये गलत है और इसको स्टेट चाहे तो रेगुलेट कर सकता है, तब आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा अंडर आर्टिकल 19. ठीक है, सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट कि एक तरफ है मनी लेंडिंग फॉर द बिजनेस पर्पस इन द कमर्शियल कम्युनिटी, दैट इज़ वैलिड. दूसरी तरफ है एक्सप्लॉइटेटिव मनी लेंडिंग बाय द प्राइवेट पर्सन्स, दैट कैन बी वैलिडली प्रोहिबिटेड और इवन रेगुलेटेड बाय द स्टेट इफ इट सो वांट्स. ठीक है, अब आ जाते हैं क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ट्रेड और कॉमर्स की कैटेगरी में डाले जा सकते हैं. इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इन द केस ऑफ उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, AIR 1993, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2178. वेरी इंपॉर्टेंट केस, ये भी राइट टू एजुकेशन पे फिर आएगा. ठीक है, ये पूछा जाता है इसलिए ध्यान दीजिएगा इस पर. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट educational institutions cannot be regarded as trade and commerce falling within Article 19, Clause 1, Subclause G. Imparting education cannot be allowed to become commerce. Trade or business normally connotes an activity carried on for a profit motive. Imparting of education has never been regarded as a commerce in India. अब इस केस में कोर्ट के सामने दिक्कत क्या थी, ये थी
कि हाउ टू इनकरेज प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विदाउट अलाउइंग देम टू कमर्शियलाइज एजुकेशंस। ठीक है, एक तरफ था कि प्राइवेट एजुकेशन भी बढ़ानी है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट सारी एजुकेशन तो हैंडल कर नहीं सकती, इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, और ना मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन में कई जगह पे वो फेल कर जाती है, तो प्राइवेट एजुकेशन फिल्स दैट वैक्यूम। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मेन एम था यहाँ पे, इट wanted to encourage private educational institutions while at the same time it did not wanted to allow them to commercialize educations। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एस्टैब्लिशिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज टू द स्टूडेंट्स इज एन ऑक्यूपेशन विच इज प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 19 clause 1 subclause G and additionally by article 26 clause A if there is no element of profit generation. Although imparting education has also becomes a means of livelihood for some professionals and a mission in life for some altruists, and it is characterized as an occupation, yet it does not cease to be a service to the society and cannot be equated with trade or business। तो ये ऑब्जर्वेशन याद रखिएगा। ठीक है, education, imparting education is a service to the society even though it is also a means of livelihood, but it cannot be equated with trade or business। तो इसका दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बेटर रखा है, क्योंकि ट्रेड और बिजनेस को और उनके जो पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी अलग होते हैं। ठीक है, तो कोर्ट ने उनको वैजरीज और द गवर्नमेंट पॉलिसी से बचाने के लिए ऐसा रूल किया है। तो याद रखिएगा, एजुकेशन इज अ पब्लिक सर्विस and also a means of livelihood for some professionals। so properly कोर्ट ने उसे ऑक्यूपेशन की कैटेगरी में डाल दिया और बोला कि establishing and administering an educational institution for imparting knowledge to the student is an occupation that is protected by article 19 clause 1 subclause G and additionally by article 26 subclause A if there is no element of profit generation। टीचिंग के प्रोफेशन को भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज जी में, पर उसको प्रोफेशन उसको ट्रेड या कॉमर्स नहीं माना जाता, वो दे प्रॉपरली फॉल विद इन द एक्सप्रेशन प्रोफेशनल्स और ऑक्यूपेशंस। ठीक है, अब एक और केस बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस पॉइंट, लोकस क्लासिकस पूछा जाता है उत्तराखंड में खास तौर से, क्योंकि उसी से डील कर रहा है। इस केस का नाम है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट वॉज डिसाइडेड ऑन 9 मार्च 2004। मैं इसका दूसरा साइटेशन भी दिए दे रहा हूँ आपको। इसका दूसरा साइटेशन है AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1896। अब इस केस में क्वेश्चन वॉज दैट द म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ ऋषिकेश अमेंडेड इट बायलॉज एंड बैंड द सेल ऑफ एग्स इन पब्लिक विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ ऋषिकेश। ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ और क्या इसमें बैन था, इसमें बाय लॉज के अमेंडमेंट के बाद बैन्स और जगह एक्सटेंड हो गए थे। सो देयर वाज अ बैन ऑन एग्स, देयर वाज बैन ऑन ट्रेड ऑफ मीट फिश इन द म्यूनिसिपल एरियाज ऑफ ऋषिकेश विच जॉइंस हरिद्वार एंड मुन्नी की रेती। ठीक है, और वहाँ पे ये स्टेटेड था कि कल्चरल और रिलीजियस व्यूज़ को और बैकग्राउंड्स को देखते हुए ये जो फूड आइटम्स है ना, इनको इन एरियाज में बैन करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट डू? सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द लॉ रेगुलेटिंग to local administration of an urban area or rural area affects the social economic life of that community. The reasonableness of complete restriction imposed on trade of non-vegetarian food items has therefore to be viewed from the cultural and religious background of the three municipal towns of Haridwar, Rishikesh and Munikireti. Therefore, the impugned bylaw notified by the municipal board of Rishikesh, which prohibited the sale of consumption of eggs within the limit of municipal board, was not violative of article 19 clause 1 subclause G and cannot be held to be violative of the fundamental right to carry on trade and profession। ठीक है, तो याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। देखिए, इसमें मैं आपको केस लॉ डिटेल में पढ़ा, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि इसमें मीट फिश के साथ साथ एग्स भी बैन किए गए थे। तो कुछ लोग को दिक्कत हो गई कि यार अब अंडे भी बैन कर दिया यार, ऐसे कैसे चलेगा, बट कीपिंग in view of the cultural and the religious background of the area, Supreme Court said that the ban is valid। चलिए, अब जरा मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ कि what is a reasonable restriction। ठीक है, अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 6।
देखिए ये केस बाय केस बेसिस पे डिटरमाइन होता है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ट्रेड टू ट्रेड रेफर करता है, और ट्रेड बिजनेस ऑक्यूपेशन उनकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कोर्ट डिसाइड करता है. तो एज अर्ली एज इन द केस ऑफ चिंतामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 1951 Supreme Court page number 118, Supreme Court laid down the test for reasonableness and reasonable restriction in context of Article 19 Clause 6. Supreme Court said that the phrase reasonable restriction connotes that the limitation imposed on a person in enjoyment of their right should not be arbitrary or excessive nature beyond what is required in the interest of public. The word reasonable implies intelligent care and deliberation, that is the choice of a course which reason dictates. Legislation which arbitrarily or excessively invades the right cannot said to be contain the quality of reasonableness, and unless it strikes a proper balance between the freedom guaranteed under Article 19 Clause 1 Subclause G and the social control permitted by Article 19 Clause 6, it must be held to be wanting in quality. इसी कंसेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए इन किशन Kakant versus Government of Kerala, citation is AIR 1997, Supreme Court, page number 128. Supreme Court said that the reasonableness of restriction is to be determined in an objective manner and from the standpoint of the interest of the general public, and not from the standpoint of the interest of the persons upon whom the restrictions are imposed or upon abstract consideration. Very important कि you have to determine it in an objective manner, not just from the point of view of these all the persons of the society or the interest of general public, but also keeping in view the objective standards that are present in each case where the reasonableness or a restriction is in question. Okay? The Supreme Court said, and I continue, that the reasonableness of a restriction is to be determined in an objective manner and from the standpoint of an interest of a general public, and not from the standpoint of the interest of the persons upon whom the restrictions are imposed or upon an abstract considerations. A restriction cannot be said to be unreasonable merely because in a given case it operates harshly. सिर्फ उसका harsh operation is not a test. In determining the infringement of the right guaranteed under Article 19 Clause 1 Subclause G, the nature of the right alleged to have been infringed, the underlying purpose of the restriction imposed, the extent of urgency of the evil sought to be remedied thereby, and the disproportion of the imposition, the prevailing condition at the time, have all to enter into judicial verdict. अब आप जानते हैं ये कहाँ से ले रहे हैं ये लोग. I won't tell you because you need to tell me which case law is there. मैं पहले भी कई lectures में बता चुका हूँ. अब एक और केस इस पे बता दूँ. ये है शिवानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. एक्चुअली स्पेलिंग है सिवानी, SIVANI. ठीक है. Sivani versus State of Maharashtra, AIR 1995, Supreme Court, page number 1770. Supreme Court very categorically laid down that the criteria to evaluate the reasonableness of a restriction under Article 19, Clause 6, the court must take into account that whether the law has struck a proper balance between the social control on one hand and on the other hand the right of the individual on the other. The court has to take into account such factors, namely the nature of the right, the underlying purpose of the restriction imposed, evil sought to be remedied, and extent of urgency, and how far the restriction is or is not proportionate to the evil and the prevailing conditions at the time. The court cannot proceed on an abstract or general notion of what is reasonable. The court cannot judge the reasonableness of a restriction from the point of view of one person or class of person on whom the restriction may be imposed. तो कोर्ट को बड़ा होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा, सिर्फ उन क्लास ऑफ पर्संस को ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा कि जिन पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड है. ठीक है. सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट. तो रीजनेबलनेस की डेफिनेशन आपको बता दी. अब क्या रीजनेबलनेस में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में अमाउंट टू प्रोहिबिशन, सवाल ये उठता है कि क्या रिस्ट्रिक्शन के अंदर प्रोहिबिशन आ सकता है. द आंसर इज यस. इस पर आप मोहम्मद फारूक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश कोट कर सकते हैं, AIR 1970, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 93. यार अगर आप वो ना कोट करना चाहें तो आप कोट कर सकते हैं द जजमेंट ऑफ नरेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिसाइडेड ऑन 3 दिसंबर 1959. ठीक है. दोनों में ही प्रिंसिपल ऑफ लॉ सेम है, मतलब कोट किया गया है, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप नरेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कोट करें. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली ले डाउन किया था after looking at a catena of judgments
that within the word restriction the cases of prohibition are also included. मतलब prohibition restriction के अंडर आता है, ठीक है. तो जब भी restrictions की reasonableness जज हो रही होगी तो obviously अगर state ने prohibit भी किया है कोई ट्रेड कॉमर्स या कुछ भी, तो कोर्ट वही टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस अप्लाई करेगा कि it will see the fact and circumstances under which the order was made. It will take into account the nature of evil that was sought to be remedied by the law, the ratio of harm caused to the individual citizens, and the beneficial effect of the beneficial effect which is reasonably expected to result to the general public. ये सारी चीज़ें नेसेसरली ही कोर्ट कंसिडर करेगा. मैं अक्सर अभी आपको जस्ट इसी के पहले मैंने बताया, ठीक है. तो ध्यान रखिएगा रिस्ट्रिक्शन के अंदर द टर्म प्रोहिबिशन इंक्लूडेड है. अब नरेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में द टोटल प्रोहिबिशन ऑन कॉपर डीलर्स वाज हेल्ड टू बी वैलिड, ठीक है. ऐसे ही दूसरा केस बता देता हूँ आपको. ऐसे ही एक दूसरा केस है सिस्टॉपिक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रेम गुप्ता, AIR 1994, Supreme Court, page number 205. In this case, the complete ban on manufacture and sale of certain medical formulation was held to be not an unreasonable restriction on the right to carry on trade under Article 19, Clause 1, Subclause G. मतलब it was a case of prohibition which the court accepted. The central government took the said decision on the recommendations of Drugs Consultative Committee, which had thoroughly studied the matter. In the implementation of directive principles, according to the Supreme Court, would be in the interest of general public, and therefore the trades which are harmful or dangerous to the ecology may be regulated or totally prohibited. Okay, I don't think you need any more judgments than this on the issue whether the restrictions may amount to prohibition or not. ठीक है. अब एक केस बताता हूँ आपको, चिंतामण राव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 1951, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 118. अब इसमें स्टेट लॉ ने मैन्युफैक्चर ऑफ बीड़ीज इन अ विलेज ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल सीजन्स प्रोहिबिट कर दिया था. According to the law, no person residing in the village could employ any other person nor engage himself in the manufacturing of beedis during agricultural season. The object of the provision was to ensure adequate supply of labor for agricultural purposes. The beedi manufacturer could not even import the labor from outside and so had to suspend manufacture of beedis during agricultural seasons. Even the villagers incapable of engaging in agriculture, like old people, women and children, etc., who supplemented their income by making beedis in their spare time, were prohibited from engaging themselves in beedi manufacture without any reason. Supreme Court held in this case that the prohibition was unreasonable because it was in excess of the object in view and was drastic in nature. वैसे एक केस है मिनर्वा टॉकीज बैंगलोर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. Citation is AIR 1988, Supreme Court, page number 526. Here the Supreme Court upheld a rule made by state government to the effect that no licensee shall exhibit more than 4 cinema shows in a day. The court ruled that the rule in question does not impose any unreasonable restriction on the freedom to carry on any occupation, trade or business which is guaranteed by Article 19. ठीक है. वैसे there was this case of Sukumar Mukherjee versus State of West Bengal, AIR 1993, Supreme Court, page number 2335. It is a bit important. यहाँ पे स्टेट लॉ ने प्रोहिबिट किया था द मेंबर्स ऑफ स्टेट मेडिकल एजुकेशन सर्विसेज फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिस. सुप्रीम कोर्ट ने इस रिस्ट्रिक्शन को रीजनेबल और वैलिड माना. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो वन कंपेल्स एनीवन टू जॉइन द सर्विस. One is free to leave it at any time. The restriction is not on the freedom to practice the medical profession, but on such practice that while one continues to be the member of the state service, the restriction is in public interest. The state is free to recruit persons to its service on such terms as it thinks desirable to make the service beneficial to public. वैसे ही स्ट्रीट हॉगिंग के केस में वी हैव द केसेस ऑफ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इन केसेस का. बॉम्बे हॉकर्स यूनियन वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, AIR 1985, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1206. सुप्रीम कोर्ट सेड that no one has the right to do business so as to cause annoyance or inconvenience to the member of public. Public streets are meant for the use of general public. They are not meant to facilitate
carrying on private trade or business, but the hawkers ought not to be completely deprived of their right. देखिए बैलेंस किया है यहाँ पे, और यही बैलेंस आपको थ्रू आउट मिलेगा जब भी आप स्ट्रीट हॉकिंग की बात करेंगे. ये राइट टू लाइवलीहुड तक एक्सटेंड हो गया था इन द केस ऑफ वोल्गा तेलिस, वो मैं 21 पे बताऊंगा, अभी इसी पे ध्यान दीजिए. सुप्रीम कोर्ट सेड that public streets are meant for the general public. They are not meant to facilitate the carrying on private trade or business, but the hawkers are not to be completely deprived of their right to carry on trade. So the court directed that there should be hawking zones in the city where the licenses should not be refused to the hawkers except for good reasons. फिर आया इसी सीक्वेंस में सोदन सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी, AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1988. अच्छा, सोदन सिंह का केस अभी रिपीट होने वाला है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा. सुप्रीम कोर्ट ने फिर कंसिडर किया इस क्वेश्चन को कि हाउ फार द हॉकर्स हैव अ राइट टू प्लाई देयर ट्रेड ऑन पेवमेंट्स मेंट फॉर पेडेस्ट्रियंस. Supreme Court came to the conclusion that right to carry on trade or business mentioned in Article 19, Clause 1 on street pavements, if properly regulated, cannot be denied on the ground that the street pavements are meant exclusively for the pedestrians and cannot be put to any other use. Proper regulation is, however, a necessary condition, for otherwise the very object of laying roads would be defeated. Supreme Court ने कहा कि street pavements पे अगर आप हॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है, दैट इफ इट इज रेगुलेटेड तो ठीक है, क्योंकि स्ट्रीट की जो रोड्स होती हैं, पेमेंट्स होती हैं, वो पेडेस्ट्रियंस के लिए हैं, उनको आप उनका पर्पस या उनके हितों को पूरा नकार नहीं सकते. सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन बैलेंस स्ट्राइक करते हुए कहा कि प्रॉपर रेगुलेशन इज हाउएवर नेसेसरी कंडीशन फॉर द वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ लेइंग रोड्स वुड बी डिफीटेड. द स्टेट होल्ड्स ऑल द पब्लिक रोड्स एंड स्ट्रीट इन द कंट्री एज अ ट्रस्टी ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक, and the members of the public are entitled as beneficiaries to use them for trading as a matter of right, subject to the rights of others, including pedestrians. The right of the hawker is subject to the reasonable restriction under Article 19, Clause 6. The court, however, negated the contention of the hawkers that they have fundamental right to occupy a particular place on the pavement where they can squat and do business. इसको रिजेक्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. सुप्रीम कोर्ट ने बोला petitioners do have a fundamental right to carry on a trade or business of their choice, but not to do so at a particular place. The court concluded that the hawkers have the right to do business while going from place to place, subject to regulation, in the interest of general convenience of the public. यही reiteration हुआ सोदन सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, इसको उसको सोदन सिंह वर्सेस NDMC 2 भी कहते हैं. इसका साइटेशन है AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट page number 1153. The court said in this case that every citizen has a right to use public street vested in the state as a beneficiary, but the right is subject to reasonable restriction as the state may choose. The street trading is a fundamental right guaranteed under Article 19 of the Constitution, but is subject to reasonable restriction which the state may choose to impose under Article 19, Clause 6. This right includes hawking on the street pavements by moving from one place to another without being stationary on the part of the pavement. This does not include a citizen's right to occupy or to squat on a specific place of his choice on the pavement, regardless of the rights of others, including pedestrians, to use the pavements. The court emphasized in this connection that proper regulation is, however, a necessary condition, for otherwise the very object of laying roads would be defeated. फिर reiterate किया था इसको. So याद रखिए, right to hawk cannot be unreasonably be restricted. The court's correct approach is to determine where the hawking is to be permitted and where it is not to be permitted. तो ऐसे hawking zones और non hawking zones बनाए जाते हैं और licenses issue किए जाते हैं, ठीक है. अब सवाल उठता है कि essential commodities का क्या. अब याद रखिएगा, ट्रेड इन एसेंशियल कमोडिटीज़ को स्टेट बड़ी ड्रास्टिकली रेगुलेट कर सकता है अगर वो चाहे तो, ठीक है. अब आपको याद होगा, अभी मैंने आपको नरेंद्र कुमार का केस बताया था जहाँ पे कॉपर ट्रेड बैन किया गया था, जहाँ पे इंपोर्ट पे उस पर रिस्ट्रेन लगाई गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से कॉपर इज़ एन एसेंशियल कमोडिटी एंड इट्स इंडिजिनस प्रोडक्शन इज स्मॉल, सो कंज्यूमर्स वो डिपेंड ऑन द इम्पोर्टेड कॉपर have the tendency to import it in large amount of quantities, and there is a tendency that its price may go up. तो इसी केस में नरेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर ही एक नॉन फेरस मेटल कंट्रोल ऑर्डर 1958 पास हुआ था,
और उस ऑर्डर का क्लॉज 3 बोलता था कि नो पर्सन शैल सेल और परचेज एनी नॉन फेरस मटेरियल एट अ प्राइस विच एक्सीडेड द अमाउंट रिप्रेजेंटेड बाय एन एडिशन ऑफ 321% टू इट्स लैंडेड कॉस्ट। और फिर उसी ऑर्डर का जो क्लॉज 4 था, इट कंप्लीटली एलिमिनेटेड डीलर्स एंड मिडलमैन फ्रॉम डीलिंग इन ट्रेड ऑफ इम्पोर्टेड कॉपर। ठीक है, तो उन्होंने ये कंटेंशन उठाया था, जो मिडलमैन एलिमिनेट हुए थे ना बीच से, जो मिडलमैन और डीलर एलिमिनेट हुए थे, यही लोग प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल थे जिनकी वजह से प्राइस ऑफ द कॉपर वेंट अप, वो एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंडर आ गया था। फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो बैन है जो आप लोग को हटाया गया है यहाँ से, कि भाई आप लोग ये काम नहीं कर सकते अब एज अ मिडिल मैन, ये बैन एकदम वैलिड है। ठीक है, बिकॉज ऑर्डर्स अफेक्ट by reading clause 3 and clause 4 was to completely eliminate the dealers from the trade in the imported copper. उन्हीं का कंटेंशन था, इट वायलेटेड आर्टिकल 19, और कोर्ट ने पाया कि इट वाज द रिजल्ट ऑफ द अब्यूज ऑफ द इम्पोर्टर्स ऑफ द प्रैक्टिकल मोनोपोली गिवन टू देम of the copper market, which seriously affected the interests of the general public in India, and to protect these interests of the public, the impugned legislations in the form of non-ferrous control order was passed. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बैन वैन ये जितने भी थे उनको तो अपहेल्ड किया, पर साथ में उन्होंने ये बोल दिया, ठीक है, कि ये जो नॉन फेरस कंट्रोल ऑर्डर का जो क्लॉज 4 है, इसको हम अभी इन्फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई प्रिंसिपल नहीं दिख रहा। तो उन्होंने बोला कि वी आर स्ट्राइकिंग इट डाउन एंड इट इज़ वॉइड बिकॉज प्रिंसिपल्स आर नॉट देयर। तो आप प्रिंसिपल पब्लिश करिए इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 3 एंड इन अकॉर्डेंस विद क्या कहते हैं, इन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से कंप्लाई करने के लिए बोल रहे थे कि क्लॉज 4 में तो कोई आपने क्राइटेरिया नहीं स्पेसिफाई किया, इसलिए हम इसे हटा रहे हैं। उसके बाद आप क्लॉज 4 को री इनैक्ट करिए और उसको पब्लिश करिए विद द प्रिंसिपल पब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन। ठीक है, ये मेन था, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो मिडिल मैन का एलिमिनेशन था और जो कॉपर ट्रेड का जो रिस्ट्रिक्शन था, कुछ को तो प्रोहिबिट कर दिया था, कई जगह उन्होंने बोला था कि जिनको हम लाइसेंस देंगे वही सेल कर सकते हैं, तो उस बात को वैलिड करार दिया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट्स प्रोहिबिशन इज विद इन द टर्म रिस्ट्रिक्शन, और मिडिल मैन को प्रोहिबिट किया गया है फ्रॉम डीलिंग विद द कॉपर एंड दिस इज अ वैलिड प्रोहिबिशन। पर क्लॉज 4 में कुछ प्रिंसिपल्स नहीं सही बैठ रहे थे, तो इनको हटाना पड़ेगा, एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू री नोटिफाई इट till the proper principles are put in place for the exercise of discretion. ऐसे ही माणिक चंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1249 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शंस विच वर प्लेस्ड ऑन द डीलर्स ऑफ गोल्ड बाय द गोल्ड कंट्रोल एक्ट उनको अपहेल्ड किया था बिकॉज इट वॉज नेसेसरी। ठीक है, तो एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शंस भी अपहोल्ड किए कोर्ट ने, जहाँ पे भी एसेंशियल कमोडिटीज़ में मैटर फॉल किया है। अभी मैं एसेंशियल कमोडिटीज़ के ही कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, अब स्लॉटर ऑफ एनिमल के कंटेक्स्ट में बताता हूँ। इस पे आपका जो सबसे पहला केस है वो है आपका मोहम्मद हनीफ कुरैशी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, डिसाइडेड ऑन 23 अप्रैल 1958. Now in this case, Bihar Preservation and Improvements of Animals Act 1955 put a total ban on slaughter of all categories of animals or species of bovine cattle. Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act 1955 put a total ban on the slaughter of cows and her progeny, which included bull, bullocks and calves. The CP and Berar Animal Preservation Act 1949 placed a total ban on the slaughter of cows, male or female cow, bulls, bullocks, etc. And for the slaughter of buffaloes, whether male or female, it was permitted only under a certificate granted by proper authorities. इस केस में no exception was made for the slaughter of cattle even for bona fide religious purposes. These three acts were enacted in pursuance of director principles of state policy contained in Article 48 of the Constitution, and the petitioners were butchers and were engaged in its trade and its undertakings. So according to them, they infringe their fundamental rights under Article 14, Article 19 and 25 of the Constitution. Right now we are concerned with Article 19. Supreme Court held that the total ban on the slaughter of cows of all ages and calves of cows
and of she buffaloes, male and female, was quite reasonable and valid, and that a total ban on the slaughter of she buffaloes or breeding bulls or working bullocks, cattle as well as buffaloes, as long as they were capable of being used as milch or draught cattle, was also reasonable and valid. And third, there is a total ban on the slaughter of she buffaloes, bulls, and bullocks after they cease to be capable of yielding milk or of breeding or working as a draught animal, was not in interest of general public and was invalid. सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग में नटशेल में आपको बता देता हूँ कि एज लॉन्ग एज द कैटल इज यूजफुल उनका स्लॉटर प्रोहिबिट किया जा सकता है, बट व्हेन द कैटल इज नॉट यूजफुल, उसने अपनी यूजफुलनेस आउटलिव कर दी है, वो मिल्क नहीं यील्ड कर सकता, वो फार्म में काम नहीं कर सकता, देन इट इज़ परमिसिबल टू स्लॉटर देम. इसी में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 के कंटेक्स्ट में बोला कि द इफेक्ट ऑफ द इम्प्यून्ड एक्ट्स on the fundamental rights of the petitioners was direct and instantaneous as soon as the acts were brought into force, and it has to be determined whether they can be justified under clause 6 of article 19. The country is in short supply of milch cattle, breeding bulls and working bullocks, and a total ban on the slaughter of these, which are essential to the national economy for the supply of milk, agricultural working power and manure, is a reasonable restriction in the interest of general public. But a total ban on the slaughter of useless cattle, which involves a wasteful drain on the nation's cattle feed, which is itself in short supply, would deprive the useful cattle of the much needed nourishment and cannot be justified being in the interest of general public. तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजलेस कैटल का जो स्लॉटर था उसे अलाउ कर दिया था, और जो यूजफुल कैटल था उसका स्लॉटर का प्रोहिबिशन को अपहेल्ड किया था. वैसे दूसरा केस आपको बताता हूँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद वर्सेस जान मोहम्मद या जान मोहम्मद, AIR 1986, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1205. A municipal corporation issued a standing order under a statute directing closure of slaughter houses for 7 holidays in a year. The order was challenged as putting an unreasonable restriction on the trade of butchers. The question before the Supreme Court was that whether the restriction was reasonable in the interest of general public. The Supreme Court took the view that the expression in the interest of general public under Article 19 Clause 6 is of wide import, and it comprehends within it public order, public health, public security, morals, economic welfare of the community and the objects mentioned in directive principles. So, the court ruled that the order in question did not put any unreasonable restriction on the fundamental rights and was valid. फिर एक और केस बताता हूँ, हसमतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 1996, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2076. In this case, state of Madhya Pradesh imposed a total ban on the slaughter of bulls and bullocks. Total ban, चाहे जैसा भी हो, ठीक है. Supreme Court quoting the judgment of M.H. Qureshi versus State of Bihar quashed this total ban. वही उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया, जो यूजफुल कैटल है उसको तो उसका तो स्लॉटर आप प्रोहिबिट कर सकते हैं, पर यूजलेस कैटल का नहीं, ठीक है. नेक्स्ट चीज़ पे आगे बढ़ते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैज़ अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. तो ध्यान रखिए, इसमें गवर्नमेंट को हाईएस्ट डिफरेंस मिलता है कोर्ट की तरफ से. किसी के भी पास अनरिस्ट्रिक्टेड राइट नहीं है टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एनी गुड्स दैट ही प्लीजेज, ठीक है. एंड द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी. इसलिए कोर्ट थोड़ा डिफरेंस भी देता है इसको, डिफरेंस मैं कह रहा हूँ, डिफरेंस नहीं, ठीक है, डिफरेंस. It gives deference to the legislative policy in this area, the legislative and the executive policy both. अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट टू चेंज, रिसेंड और ऑल्टर दिस इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम मेयरली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस उनको भी अपहेल्ड किया है, और नॉर्मली कोर्ट उन पॉलिसी डिसीजंस में जाता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि किसी के भी पास ये भी राइट नहीं है टू क्लेम अ ग्रांट ऑफ एन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंस एनफोर्सेबल एट लॉ merely on the basis of a policy statement. Of course, I am speaking about the observation of Andhra Pradesh Industrial Works versus Chief Controller of Imports, AIR 1974, Supreme Court, page number 1539. कभी कभी क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है विद अ व्यू of earning more foreign exchange
कि वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एक प्रॉपर या स्पेसिफाइड चैनल से ही करेगी। इस कैनलाइजेशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं माना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था बड़ा क्लियरली इन द केस ऑफ दया वर्सेस जॉइंट चीफ कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1796। इसका एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा ये हो सकता है कि इन द केस ऑफ ग्लास चैटोन्स importers and users association versus Union of India AIR 1961 Supreme Court page number 1514, import of glass chattons was banned but import licenses were issued to the state trading corporation under the import order. So this is an example where the administrative policy making and by using its power to issue import and export licenses, the government was able to create a monopoly for import and export of several commodities in the favor of its specialized agencies like State Trading Corporation and like the Mineral and Metal Trade Corporation. वैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल है लॉर्ड कृष्णा शुगर मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए पार्लियामेंट एनेक्टेड अ लॉ इम्पोजिंग एन ऑब्लिगेशन ऑफ द शुगर मिल टू हैंड ओवर अ परसेंटेज ऑफ देयर प्रोडक्शन टू गवर्नमेंट एजेंसी फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, नाउ the scheme was challenged on the ground that the mills were forced to sell a part of their production at a loss. गवर्नमेंट का कंटेंशन था कि दिस इज टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज और इनको जो भी लॉस हो रहा है इन फिक्सिंग द इंटरनल प्राइस वो उसमें एक मार्जिन है टू कवर देयर लॉस ऑन एक्सपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्कीम को अपहेल्ड किया और उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना बिकॉज द लॉस इफ एनी वॉज कंपेरेटिवली लेस and there was a very real possibility of it being recouped by earning foreign exchange. Court also ruled that the reasonableness of a restriction imposed under the act could be assessed by taking into account the countervailing advantage conferred under another act if both acts are enacted as a part of a single legislative plan. तो ये दोनों अच्छे बड़े एग्जाम्पल हो सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेके। अब नेक्स्ट आता है कि क्या टैक्सिंग को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना जाता है? द आंसर इज नो, टैक्सिंग को कभी भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं माना जाता और इसको तो और भी ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए गए हैं ओवर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। इवन द इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इज नॉट रिगार्डेड एज इनवैलिड बाय द कोर्ट्स। ठीक है, अच्छा कुछ टैक्स होते हैं जो कंपनसेटरी इन नेचर होते हैं, आर दे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस या क्या वो प्रोहिबिटेड है? डू दे वायलेट आर्टिकल 19? आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट very categorically mentioned that in GK Krishnan versus State of Tamil Nadu AIR 1975 Supreme Court page number 583 that compensatory tax can never operate as an unreasonable restriction on the right to carry on trade and business। बहुत सीधे बोल लिया। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना कि टैक्स बहुत हैवी है, एक्सेसिव है या unreasonable restriction है, imposes heavy burden on trade and commerce या profits are greatly reduced, इस पे कोर्ट यूजुअली काम नहीं करता। कहाँ कोर्ट अपनी पावर दिखाता है? वहाँ पे दिखाता है जहाँ पे एक्सट्रीम केस है, मतलब टोटली एक्सट्रीम, जहाँ पे इम्पोर्ट या टैक्स कैन बी रिगार्डेड एज कन्फिस्केटरी इन नेचर या टोटली डिस्क्रिमिनेटरी, वहाँ पे द कोर्ट वुड एक्सरसाइज इट्स पावर। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने टैक्स रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगा दिया, किसी ने क्या लेजिस्लेचर ही लगा सकता है, लेजिस्लेचर स्टेट का हो या सेंटर का हो, अब दोनों में से किसी एक ने टैक्स रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगा दिया तो क्या वो वैलिड होगा? द आंसर इज यस। इस पे हम हमारा जो पहला केस है वो है कृष्णा मूर्ति एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2455। यहाँ पे हुआ क्या था? Supreme Court said that the imposition of tax with retrospective effect is not regarded as invalid, and to test whether the retrospective imposition of tax operates harshly to violate the fundamental right under Article 19, the court considers such factor such as relevance as the context in which the retroactivity was contemplated, whether the law is one of validation of taxing statutes struck down by the courts for certain defects, the period of such retroactivity, the degree and the extent of unforeseen or unforeseeable financial burden for the past period, etc.
In this case, what happened, a sales tax law was voided by the High Court and it was validated by the state legislature with a retrospective effect by passing the act. This retrospective law was held to be valid because had the law not been validated, the dealers who already collected tax from customers would have had a windfall, as they would have not had any such right had the original law had been valid. मतलब जिन डीलर्स के हाथ में वो पैसा था उनको फिर वो किसी को देने की ज़रूरत नहीं, तो उनके पास तो फ्री की इनकम होगी. और साथ ही साथ आपको ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि जो टैक्सिंग के प्रोविजन है ना वो आर्टिकल 265 से शुरू होते हैं. उनको कोर्ट काफ़ी डेफरेंस देता है बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटैलिटीज टू रन. तो एक चीज़ याद रखिएगा टैक्सिंग स्टैट्यूट के कंटेक्स्ट में ही कि कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर जो है वो किसी इनवैलिड एक्ट को वैलिड कर सकता है अगर कोर्ट के द्वारा पॉइंट आउट की हुई इन्फॉर्मिटीज और विशिएटिंग फैक्टर्स जो हैं उनको करेक्ट कर दे और उनकी जो इन्फॉर्मिटीज हैं उनको टोटली रिमूव या क्योर कर दे लेजिस्लेचर, तब वो एक्ट वैलिड हो सकती है, अदरवाइज नॉट. ऐसे में वैलिडेटिंग एक्ट कैन बी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. अभी रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट सिर्फ टैक्सिंग ही हो सकती हैं या सिविल नेचर की हो सकती हैं, क्रिमिनल नेचर की नहीं हो सकती, उसमें आर्टिकल 20 लग जाता है. अब दूसरी चीज़ बताता हूँ, क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर विच इज़ नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ एंड इज मेड इम्पोजिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, उसकी क्या वैलिडिटी है? उसका आंसर है सिंपली कि इट इज़ वॉइड. इस पे केस लॉ है ताहिर हुसैन वर्सेस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 630. बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको बता दिया. बिना लॉ के अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन ने रिस्ट्रेंट लगाई वॉइड हो जाएगा तुरंत. एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को अपनी पावर किसी लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट में ट्रेस करनी है, अगर वहाँ से नहीं ट्रेस हो पाती तो अपना मनमानापना नहीं एक्सरसाइज कर सकती हूँ. ऐसे डिस्क्रिप्शन को या ऐसे रेगुलेशन को कोर्ट उड़ा देगा. इस पॉइंट पे आप एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को भी कोट कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि उसमें भी इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ था. ठीक है, बट आई डोंट थिंक कि उसको रीइटरेट करना ज़रूरी है. एक केस बताता हूँ, पुराना है काफ़ी, 1955 का है. विजय कॉटन मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 33. In this case, Minimum Wages Act 1948 was challenged on the ground that it puts unreasonable restriction on the employers to carry on their trade and the employees who could not work on terms mutually agreed upon between them and their employers, and the procedure to fix minimum wages was arbitrary, that it left everything to the unfettered discretion of the government. Supreme Court ने क्या किया? It held the act valid and said that the securing of living wages to laborers is in the interest of public and it is necessary to ensure not only the bare physical sustenance but also the health and decency to laborers. It is necessary to curb the freedom of contract to prevent exploitation of laborers. Though the powers enjoyed by the government are wide, yet there are sufficient procedural safeguards within the act itself. अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट था कि there is no provision for the review of the government decision in the act. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि merely because there is a lack of review of the government decision, that does not make the act unreasonable because it has the other adequate safeguards against any hasty or capricious decision by government. अब एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन से ही निकल के एक टॉपिक आता है लाइसेंसिंग का. एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ही लाइसेंस ग्रांट करती हैं, तो क्या रेगुलेशन ऑफ ट्रेड थ्रू लाइसेंसिंग सिस्टम अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है? ऑब्वियसली नॉट. मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ. पहला है आपका शेषाद्री वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 747. यहाँ पे एक रूल था which requires the cinema licensee to show at each performance approved film of such length and for such length of time as the government might direct. ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस इज अनरीजनेबल. क्योंकि देखिए यहाँ पे टर्म क्या लगा हुआ है कि ऐसे लेंथ की फिल्म उस लेंथ के लिए आप दिखाइए जितना मैं चाहूँ. ये अनरेगुलेटेड डिस्क्रेशन है. अनरेगुलेटेड डिस्क्रेशन जहाँ पे भी कोर्ट को दिख गया, you know what happens, it's bad. ठीक है. वैसे ही गोल्ड कंट्रोल एक्ट में एक प्रोविजन था जिसमें गोल्ड ऑर्नामेंट्स के लिए लाइसेंस दिया जाता था, गोल्ड ऑर्नामेंट के डीलर्स को लाइसेंस दिया जाता था. तो वो जो प्रोविजन था
वो एग्जीक्यूटिव को अनगाइडेड डिस्क्रेशन देता था, ठीक है. इट गेव द अनगाइडेड डिस्क्रेशन इन ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंसेस. उस डिस्क्रेशन के अंदर सूटेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट, एंटिसिपेटेड डिमांड, एस्टिमेट्स बाय हिम फॉर ऑर्नामेंट्स इन द रीजन और पब्लिक इंटरेस्ट सब वही कंसीडर कर रहे हैं, पर किन क्राइटेरिया पे कंसीडर कर रहे हैं वो है ही नहीं. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये टर्म बड़े वेग हैं, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं है, देयर इज नो नॉर्म फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर्स डिस्क्रेशन, दस अनफेटेड पावर है, वी आर होल्डिंग दिस प्रोविजन इनवैलिड. सिमिलरली ऐसा अनगाइडेड डिस्क्रेशन सुप्रीम कोर्ट ने पाया इन द केस ऑफ ए एन परशुराम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 40. यहाँ पे भी गवर्नमेंट किन ग्राउंड्स पे लाइसेंस ग्रांट कर रही है वो नहीं पता है, मन माना डिस्क्रेशन है उसका. व्हाट डिड सुप्रीम कोर्ट डू? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोला कि इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द विम्स एंड फैंसी ऑफ द अथॉरिटी एंड मे इट मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन होल्डिंग द ऑफिस. ये प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. अनकैनलाइज डिस्क्रेशन कोर्ट कहीं पे भी देख लेता है, इट स्ट्राइक्स इट डाउन. आई थिंक इतने केस लॉज आपके लिए सफिशिएंट होंगे, है ना, इस पॉइंट पे. प्राइस फिक्सेशन भी एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है. इसमें डिफरेंस मिलता है गवर्नमेंट को काफ़ी हद तक. अब जैसे इसका एक इलस्ट्रेशन ही काफ़ी होगा, वो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. साइटेशन इज AIR 1983 कैलकाटा हाई कोर्ट, पेज नंबर 307. ये कैलकाटा हाई कोर्ट का जजमेंट है, तो एक सिंगल पॉइंट से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एल्यूमिनियम कंट्रोल ऑर्डर 1970 पास किया था फॉर द एंड इट फिक्स द रिटेंशन प्राइस फॉर ईच प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम. ये ऑर्डर पास हुआ था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंदर. सुप्रीम कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट हेल्ड द स्कीम ऑफ प्राइस फिक्सेशन इनवैलिड. वैसे ही एक और चीज़ जान लीजिए कि जो क्राइटेरिया कोर्ट ने फिक्स कर रखे हैं फॉर द प्राइस फिक्सेशन वो बहुत अलग है. अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, in the case of Diwan Sugar Mill versus Union of India, AIR 1959 Supreme Court, पेज नंबर 626, प्राइस फिक्सेशन के मैटर पे सब्सटैंशिव safeguards are the main criteria, not the procedural safeguards. कोर्ट procedural safeguards पे उतना इंसिस्ट नहीं करते, ठीक है. इनफैक्ट आज तक के केसेस में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स के केस को छोड़ के, पूरा नाम बता देता हूँ आपको, दैट इज प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1690. उस केस को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्राइस फिक्सिंग ऑर्डर से इंटरफेयर नहीं किया है ऑर्डिनरली, ठीक है. जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ श्री मीनाक्षी मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 366. It was a case which dealt with fixation of yarn prices. Supreme Court refused to intervene, stating that even if some producers sustained a loss for some time, it cannot be regarded as unreasonable restriction, for the purpose of price fixation was not only to consider the profit of the manufacturer, but also hold the price in line. The trade and commerce undergoes the period of prosperity and adversity because of economic, social and political factors. The price fixed is not arbitrary, neither so grossly inadequate that it only results in huge losses. ठीक है. So Supreme Court का attitude is in giving difference to the government policy in this situation. Price fixation पे court hardly interfere करता है. एक ही case है which I can recall, that is the Premier Automobiles versus Union of India. ठीक है. उस केस में, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स के केस में, फेयर प्राइस अंडर सेक्शन 18G ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 को टेस्ट किया था इन रिलेशन ऑफ फिक्सिंग कार प्राइसेस. अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गवर्नमेंट शुड रिव्यू द कार प्राइसेस एवरी 6 months, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कार कोई एसेंशियल कमोडिटी कैसे हो सकती है, कार इज़ नॉट एन एसेंशियल कमोडिटी, ठीक है. प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स के केस में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट हैज एन इंटरेस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरर इन केस ऑफ प्राइस फिक्सेशन, ठीक है. सो दैट इज़ इट. आपका आर्टिकल 19 नाउ कंप्लीट पूरी तरीके से, ठीक है.